ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਚੁਗ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MCQ ਬੇਸਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ concept of rest and motion ਦੇ best MCQs। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ concept of motion ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਜੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ MCQ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ VT ਗ੍ਰਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ VT ਗ੍ਰਾਫ। ਉਹ VT ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖੋ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ VT ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? It is at rest, मतलब ये आराम पे है, रुकिया होया है। It is in uniform motion, मतलब ये एकसार गति विच है। Moving with uniform acceleration, मतलब ये एकसार प्रवेग विच है। ते लास्ट है in non uniform motion, मतलब एकसार नहीं है। तो ऑप्शन इंदा की आंसर आएगा? इंदा राइट आंसर आएगा तो अपने कोल कि ये यूनिफॉर्म मोशन दे विच है। या ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ T ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ST ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ST ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ S ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, S ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ST ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ A ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। बट हुण अपने कोल VT ग्राफ सी, इस करके इसका आंसर बनेगा B ऑप्शन, एकसार मोशन, ठीक है जी। आजो आपां हुण अपना अगला क्वेश्चन वेखदे हां। Which of the following can sometime be zero for a moving body? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ वेलोसिटी, मतलब वेग, डिस्टेंस मतलब दूरी, एवरेज स्पीड मतलब गति, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो अपने को ऑप्शंस हैगियां ने एक ए ऑप्शन कली मतलब कली वेलोसिटी, बी ऑप्शन हैगी है फर्स्ट एंड सेकंड मतलब अपने को वेलोसिटी ते डिस्टेंस, सी ऑप्शन है एक ते लास्ट वाली फोर्थ वेग ते विस्थापन, फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। ता मेरे साथियों इंदा बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है जो है अपने को सी। हुण सी दा मतलब इंदे च आ नहीं है कि एवरेज स्पीड इंदा आंसर है, सी मतलब आ वाली ऑप्शन है अपने को, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब एक तो एवरेज वेलोसिटी मतलब हो गया अपना वेग हो गया, ते नाल डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। हम तानू मैं अगे भी सिखाया सी, डिस्प्लेसमेंट हो गई या वेलोसिटी हो गई, इन्हां दा सेम मतलब ही हुंदा है, इन्हां दा लिंक की हुंदा है? सेम हुंदा अपने कोल, ठीक है जी। लिंक इनदा सेम हुंदा है वेलोसिटी दा ते डिस्प्लेसमेंट दा, ठीक है जी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। बट जिहड़ा डिस्टेंस ते स्पीड है वो की ने नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकते। इस करके तुसी हमेशा एक चीज याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इको वर्गे ने, ठीक है जी। चलो जी, अगला अपने को आ रहा है
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਹੀ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆंसर ਨਿਕਾਲੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ u, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਐਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਈ ਮਤਲਬ v ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 0। v ਮਤਲਬ अंतिम वेलोसिटी होंदी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, ते अपने कोल जेड़ा ओनू रुकन वास्ते कितना लग्या, 20 सेकंड लगे ने। ठीक है जी, हुण अपने कोल की कुछ है, u हैगा, v हैगा ते की हैगा, t हैगा। निकालना की एक्सेलरेशन। देखो तानू मैं अगे भी सिखाया, s नहीं आया इत्थे, s बोले तो डिस्टेंस दा कुछ भी यूज नहीं होया, तो इस करके आपां इत्थे फर्स्ट इक्वेशन जेड़ी होंदी है दैट इज वो होंदी है v is equals to u plus at, v is equals to u plus at पहली इक्वेशन होंदी जेड़ी उनका यूज हो जाएगा, ते उथों अपने को आंसर आएगा 0 is equals to लिख दांगे ut नू जब मल्टीप्लाई करांगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस सॉरी इत्थे कला u सी ना, तो एक मैं साफ करके लिख देना ताकि तानू आसानी हो जाए। जी हाँ, आपने को लगा सी v is equals to u plus at, ऐदा ही सी, u दी वैल्यू पुट करती 10, v दी पुट करती 0 इक्वल्स टू 10 प्लस a दी वैल्यू अपन निकालनी है, t दी वैल्यू v पुट हो गई। ठीक है जी, हुण आ वाले जदों रकम नूं इधर लेके आवांगे तो माइनस विच हो गई, -10 अपॉन v, 0 0 कट्टी गई तो a कितना आ गया, अद्धा, बट नाल की लग गया है माइनस निशान। तां साथियों हुण देखो आंसर आ चुके ने, बट आंसर रॉन्ग आया है, बिकॉज इत्थे की पूछिया सी, रिटार्डेशन पूछी सी, मतलब आपां नूं आंसर किंदे च लिखना है, होस्टी विच लिखना है। हालांकि आंसर अपना आया a is equal to -0.5 आया है, बट a की है अपने को एक्सेलरेशन, उन्हें की पूछी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है अगे एक होर की ला दो माइनस का निशान, तो अगे एक माइनस है, माइनस माइनस की हो जाएगा ऐड दा बन जाएगा। ठीक है जी, जे तो एक्सेलरेशन पूछी होंदी तो सी आंसर बनना सी, और रिटार्डेशन पूछी तो इत्थे की बनेगा, डी आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो जी अगला अपने को आ गया स्पीड टाइम ग्राफ। अपने को है इत्थे आपां इनफॉर्मेशन जिहड़ी इत्थे लिखी है उनका इस्तेमाल हुंदियां आपां नूं इहदा टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपां नूं की काउंट इत्थे की चीज निकालनी है, कुल दूरी। हुण तुहानूं देखो इत्थे जिहड़े मैं रिजल्ट सिखाए सी, ये देखो है कि अपने को स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है जी, स्पीड टाइम है ग्राफ, तो इहदी जिहड़ी आपां आंसर लिखे सी, रिजल्ट लिखे सी, ओ याद रखो तुसी, तुहानूं कुछ आया होना याद कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ की हुंदा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे इक्वल हुंदा है। तो आपां इहो चीज तो करनी है, जे आपां डिस्टेंस करना है तो मतलब आपां नूं इहदा निचला एरिया सारा, आ वाला सारा एरिया इत्थों लैके एनी तक दा सारा एरिया निकालना होएगा। हुण देखो आ जिहड़ी फिगर है इहनूं आपां अलग-अलग वे नाल एरिया निकाल सकदे आ, जे तुसी आ लाइन नूं इहदे नाल की कर दो अटैच। ठीक है जी, जे ए जिहड़ी लाइन इहदे नाल अटैच हो जावे तो अलग आंसर बनेगा, तो अपना एरिया की बनेगा, एक इहदा एरिया ते एक इहदा एरिया की होणगे ऐड हो जाणगे। इहदा एरिया की हुंदा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हुण आ निचला की आंदा, ए हुण जिहड़ी चीज नीचे हुंदी ओनू कहने बेस, ते जिहड़े आ हुंदे ओनू कहने हाइट।
हुण आ चीज कितनी है अपने कोल नीचे देखो आ चीज कितनी आ रही है 50 ते हाइट कितनी बच गई देखो ओवरऑल हाइट कितनी सी आ देखो इत्थे तक ओवरऑल इतनी हाइट है बट उनकी जो आ चीज करनी पैनी है माइनस तो कितना बन गया 25 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 25 ਗੁਣਾ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ 25 ਗੁਣਾ 25 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 625 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਯਾਦ ਉਹ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਥ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬਚ ਗਿਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 L कितनी है L बोले तो लेंथ 50 5 गुना 50 कितना होता है 250 ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 875 875 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀਆਂ टू साइड पैरेलल होण ते ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਇਨਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a + b ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ हो सकता है बट आ वाला अपने को अच्छा सी कि अपन दो हिस्से वंड लिए बिकॉज उन्होंने अपन ईजी वे ना लिखना आंदा है ठीक है जी चलो जी इसका आंसर फिर अपने को बन गया बी ऑप्शन 875 मीटर अगला क्वेश्चन अपने को आ गया which of the following is most likely is not the example of uniform circular motion एकसार सर्कुलर मोशन दा एग्जांपल है एक है जी जो नहीं हैगी आपा वो लभनी है देखो ए ऑप्शन की दी हुई है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सूरज दे आले दुआले धरती दा रोटेट होना या उनका घूमना ये तो सिंपल चीज है एग्जांपल मैं तुहानू एग्जांपल भी रखी सी ठीक है ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है बी ऑप्शन जेड़ा कोई खिलौना एक हुंदा ना अपने कोल जदों आपां छोटे हुंदे सी तां की करदे सी आप छोटा जिहा एक खिडौना लेके आंदे सी जिंदे विच जेड़ी कि अपनी रेल गड्डी की करदी रहिंदी सी सर्कुलर पाथ विच ओह जदों आपां की करदे सी पिछों इंजन नूं या कुछ होर नूं जदों आपां उहदे विच सैल वगैरह पांदे सी तां ओह अपने आप की करदी सी मूव होंदी रहिंदी सी तां इह भी एक एग्जांपल किहदी है यूसीएम दी है अगली लिखी हुई है मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर रैक देखो जिथे भी रेस होंदी होएगी हुण ओह तां है नहीं कि इन्ना ही मान लो आ हुंदा रस्ता तो बिल्कुल इहदे उत्ते आंदी है इधर उधर ही हिलदी होएगी जे इधर तो हिलदी होएगी तां मतलब ओह ऑप्शन यूसीएम दी नहीं हैगी तां अगली ऑप्शन जे आपां वेखीए ओह किसी आवर हैंड ये मैं तुहानू अगे ही सिखाया है आपां जदों भी आपदा फौज वगैरह वेखदे आ तां उहदे च की हुंदे सैकेंड होगी सैकेंड वाली सुई होगी आवर वाली सुई होगी मिनट वाली सुई होगी की करदियां एक फिक्स एक्सिस दे आले दुआले की करदियां रोटेट तो वह भी एक इनदी एग्जांपल है तो सी ऑप्शन इनदी की होगी आंसर बन गया कि जदों भी कोई चीज सर्कुलर मोशन दे विच हुंदी है तो वह उनदी फिक्स्ड एक रास्ता होना चाहिए बट जे आपां गल करिए जदों किसी भी व्हीकल दी आपां रेस लगावांगे तो वो की हो जाएगा उबड़ खाबड़ आएगी मतलब इको रास्ते से नहीं आ पाएगी तो हो जाएगी वो यूसीएम दी एग्जांपल नहीं बनेगी अगली अपने को आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल मतलब विस्थापन अते दूरी इक्वल हो जाते हैं उनके वास्ते की अपने कोल कंडीशन होवेगी ਇਹੋ जी की चीज हुंदी है जदों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहणगे ऑप्शन इफ इट इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड जे ओ जेडी व्हीकल है वो सीधे रोड ते जाएगा बी ऑप्शन जे ओ सर्कुलर पाथ च घूमेगा
सी ऑप्शन जो इधर उधर मतलब इत्थे एग्जांपल लिखी है जिनका नाम है पेंडुलम। पेंडुलम मतलब ਹੁੰਦਾ है ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਤੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਯੂਸੀਐਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ ਫਸਟ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ ठीक है जी तो वो इक्वल होंगे है सहमत होने आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इक्वेशन ऑफ मोशन ਦੇ बेस ਤੇ न्यूमेरिकल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ -0.5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ रवेग पैदा की जा सके मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड हाउ फार इट गो बिफोर इट कम टू रेस्ट पता लगाओ कि वो जिहड़ी चीज है रुकन तो पहला कितना दूर तक आवेगी ठीक है जी ये चीज आपां निकालनी है ये तुहानू अगे मैं जी एग्जांपल पहला दिखाई सी आपदे पिछले लेक्चर विच देखो ए इनकी की होगी इनिशियल स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर है हुण देखो एक चीज होर तुहानू बच्चों इंपोर्टेंट है कि इनकी इकाइयां होंदियां वो की होनी चाहिए इक्को वर्गियां एक्सेलरेशन किंदे च लिखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच जेडी इहदी यू दित्ती इनिशियल वेलोसिटी मतलब जेडी वेलोसिटी उनदे कोल स्टार्टिंग विच हैगी सी वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर हुण एक चीज किलोमीटर पर आवर विच है ते एक अपने कोल मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच है ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90 ਤੇ 90 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/18 18 ਗੁਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 5 5 25 ਤਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਚ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ h ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣ h ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇਗੀ h ਨਿਕਾਲਣਾ h ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ut + half at square या v square is equal to u square plus 2as बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ t ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ t ਬੋਲੇ तो टाइम ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ v square equals to u square plus 2as ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ v ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ v ਕਿੰਨਾ 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25 25 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 625 ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਲਿਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 0.5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ s ਦਾ ਆਪਾਂ s ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਫ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ a ਦੀ ਸੌਰੀ
0 इज इक्वल टू कितना हो गया 625 माइनस एस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 625। s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 625। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब विस्थापन ते दूरी दी दा अनुपात कितना हुंदा है। ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा एक तो घट। बी ऑप्शन इक्वल टू 1 और लेस देन 1, मतलब एक के बराबर या एक तो घट। सी ऑप्शन हमेशा एक तो वध, मतलब ऑलवेज मोर देन 1 या इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1। लास्ट ऑप्शन है एक या एक तो वध या उसके बराबर। तो एंदा राइट आंसर तानू उदों आंदा होएगा जे तानू एंदा पता होएगा डिस्प्लेसमेंट की हुंदी है। डिस्प्लेसमेंट तानू अगे के नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, बट जेड़ा की डिस्टेंस है वो हमेशा की हुंदा है, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बट जो डिस्प्लेसमेंट वो की हो सकती है, जेड़ा डिस्टेंस हो जेड़ा अपना वो की हुंदा है हमेशा ऑलवेज लार्जर देन जीरो हुंदा है। डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एंदा दा रिलेशन हुंदा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू और लेस देन 1। ठीक है जी, बिकॉज जेड़ा डिस्प्लेसमेंट है हमेशा डिस्टेंस तो की होएगा नीचे हुंदा है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस तो नीचे हुंदी है, या इक्वल भी हो सकती। इक्वल होएगी जो इको सिंगल रास्ते ते जाणगे, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा हायर होंदा है डिस्प्लेसमेंट नालों। ठीक है जी, बिकॉज अपन पता डिस्टेंस दा सिंपल रास्ता होंदा है, डिस्प्लेसमेंट की होंदा है शॉर्टेस्ट रास्ता। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब उस तो निक्का होंदा है डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, ये एग्जाम वास्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे तुहानू इहदा आंसर आंदा समझो तुहाडा पहला चैप्टर कंप्लीट अच्छे नाल तुहानू आ गया। अपने कोल ए बी सी डी डिफरेंट व्हीकल्स है। ठीक है जी, उन्हां दी डिस्टेंस टाइम जेड़ा ग्राफ है वो अपने हेठां लिखिया होया है, दिखाया होया है। तानू ये चीज तुसी वेखनी है कि इन जिहड़ियां ऑप्शनां दित्तियां ए बी सी डी, इन्हां विचों एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी सारियां रॉन्ग ने। तां तुसी जिहड़ी ऑप्शन सही है वो चूज होएगी। हुण ये चीज तो की पता लगना है, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ABCD ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ABCD ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ABCD ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A is faster and D, A ਦੀ ਸਪੀਡ D ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। B ਆਪਸ਼ਨ B ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। सी ऑप्शन केड़ी है, जेड़ा कि व्हीकल डी है वो काफी फास्ट है एज कंपेयर टू सी, डी इज फास्टर देन सी। लास्ट ऑप्शन है सी सब तो स्लोएस्ट है, मतलब सब तो घट स्पीड सी दी है। तो देखो ये ऑप्शन सीधी सीधी उड़ जानी है, बिकॉज या तक सब तो घट स्पीड डी दी होनी है या किंदी होएगी बी दी होएगी। ठीक है जी, तो तुहानू एक चीज देखो, एंदा जेड़ा स्लोप है मतलब एंगल की है, तुसी एंगल तानू एक चीज सिखाई सी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किंदे इक्वल हुंदा है, स्पीड दे इक्वल हुंदा है। मतलब हुण एंदा मतलब तानू सिखाई सी एंगल, ता मतलब की हो गया जिन्ना वड्डा एंगल उन्नी ज्यादा स्पीड। ता इत्थे डी ए दी स्पीड सब तो हायर है, बी दी सब तो लोअर है। तो देखो जेडी सेकंड ऑप्शन ये लिखी सी बी दी स्पीड की सब तो ज्यादा लेस है, घट है, तो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होवेगा। ठीक है जी, डी दी स्पीड सब तो ज्यादा है बिकॉज उनका एंगल सब तो वध बनदा है, ते जेड़ा बी है उनका एंगल सब तो घट बनदा है, इस करके उनकी स्पीड सब तो घट हैगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तुसी बार-बार ये भी सोच रहे हो कि सर तुसी मिनट बाद एहो जे एक्सटी ते या एहो जे कुछ लेके आ रहे हो। तब बच्चों जेड़ा पहला टॉपिक अपना कितना है मोशन ऑन द सब तो इंपॉर्टेंट ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ते वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
चलो जी अगला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਸਤੂ पहला लिखा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब खैर वर्दी वेग सेकंड चीज लिखी हुई है अपने कोल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक सार गति नाल अगे वध रही है सी ऑप्शन है एट रेस्ट मतलब रुकी हुई डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब उनकी एक सार गति है तो बिल्कुल सही आंसर है तुहानू हाल तक आ गया है बिल्कुल ठीक है वो है अपने को तुहानू अगे भी सिखाया डी ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्टिंग विच तो अपने को जेड़ा पहला सी उहदे च भी एवें आया सी तो तुहानू उहदे क्या सी जे इत्थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होवे तो मतलब कि किंदे च होएगा यूनिफॉर्म देखो उत्ते की लिखा है उत्ते आंसर सी यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जी हुण इत्थे की लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तुहानू उहदे भी क्या सी इक्को ही मतलब है ठीक है जी जे इत्थे एसटी ग्राफ होता तो फिर आना सी सी ऑप्शन एट रेस्ट चलो जी अगला क्वेश्चन सीधा सीधा हुणे तुहानू एक्सप्लेन में हो चुका है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव दूरी समय दा ग्राफ की देंदा है ऑप्शन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड या बी एंड सी बोथ मतलब यूनिफॉर्म स्पीड ते स्पीड एंड आंसर इकट्ठे ने देखते हैं कितने आंसर आ रहे हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का की हुंदा है अपने को स्पीड इकल्ली स्पीड मिलती है यूनिफॉर्म स्पीड नहीं मिलती ठीक है जी जे मैं तुहानू ये पूछा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ का स्लोप की देंदा है तो उनका आंसर आएगा की आएगा बच्चों एक्सेलरेशन जी हाँ बिल्कुल ठीक एक्सेलरेशन आएगा जो की होवे अपने को VT ग्राफ जे डिस्टेंस टाइम मतलब ST ग्राफ है तो की बनता है स्पीड एनू याद रखने का वे तुहानू सिखाया सी डिस्टेंस पहले आंदा है फिर आंदा है वेलोसिटी फिर आंदा है एक्सेलरेशन जे होएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आंसर उस तो अगला वेलोसिटी जे होएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उनका आंसर अगला एक्सेलरेशन ठीक है जी ते एना दा जेड़ा एरिया हुंदा है ओ की हुंदा इक्को वर्गा उनका आंसर हुंदा है डिस्टेंस दे इक्वल चलो जी अगला भी थोड़ी स्क्रीन पे आ गया फिर है हो जाई एना विचों एज अ पोजीशन टाइम ग्राफ लभो जिथों आपां नू वस्तु स्थिर लगे मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एट रेस्ट या रुकिया होया इको ही मतलब है स्थिर होवे या रुकिया होया लगे तो इन्हां दे ऑप्शंस अपने कोल ABCD अलग-अलग ने तानू पहचानना है कि इन्हां विचों इहो जा ग्राफ दा आंसर दसो जेड़ा की होएगा रुकिया होया ऑब्जेक्ट नू शो कर रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं अपने को सब तो वधिया आंसर आ रहे हैं जी एवं रिप्लाई आंदे रहन तो सानू भी वधिया लगूगा जी ते हौसला तुहाडा भी अफजाई होएगा तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जी तुहानू हुणे सिखाया जे एसटी ग्राफ विच इदां दा आवे लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस तो उनका मतलब की हुंदा है ऑब्जेक्ट रुकिया होया है अगला जेड़ा आ गया वो अपने को सीधा सीधा फिर आपां रिजल्ट याद रखना है व्हाट डज एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव मतलब VT ग्राफ दा आपां नू एरिया मतलब क्षेत्रफल की देंदा है ऑप्शन डिस्टेंस मतलब दूरी बी ऑप्शन एक्सेलरेशन मतलब प्रवेग सी विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट डी एना विचों कोई भी नहीं तो मेरे क्वेश्चन नु बोलदे मेरे दा आंसर भी आ गए ने जी हां तो इनके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे तुहाडे मैं हुणे तुहानू सिखाया एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ हो जावे या भावें डिस्टेंस वाला हो जावे आंसर की बनता है हमेशा हुण डिस्टेंस आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कुछ बच्चों दे ए आ रहे कुछ दा सी आ रहे हैं तो देखो बच्चों जे इत्थे स्पीड टाइम ग्राफ दिता हुंदा स्पीड दा लिंक किंदे नाल है डिस्टेंस नाल है वेलोसिटी दा लिंक किंदे नाल है डिस्प्लेसमेंट दे नाल है इस करके इनका आंसर आएगा सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट जे इत्थे स्पीड टाइम हुंदा तो आंसर ए बनना सी ठीक है बच्चों अगला अपने को स्क्रीन पे फिर आ गया क्वेश्चन व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कल
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਰਕਲ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ मतलब कोई चीज जदों सर्कल वाले रस्ते ते घूमदी है तो उनकी की चीज सेम रहती है ते की चीज अलग अलग होंदी है। ये लाइन मैं तुहानू उदों भी कहा सी कि अपनी एक्सप्लेनेशन की थी यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे तुहानू उदों आ चीज लिखवाई सी एक लाइन लिखी सी छोटी जी कि ये चीज सेम रहती है चीज अलग अलग होंदी है। तो मैनूं लगदा तुहानू हुण तक याद आ गया होएगा कि की चीज सेम रहेगी तो की चीज अलग होएगी। हुण इत्थे है कि या स्पीड या वेलोसिटी मतलब या तो की चेंज करेगा वेग या फिर की चेंज करता होएगा गति या फिर उन्हां विचों कुछ में चेंज होएगा या फिर इकट्ठे चेंज होणगे। ऑप्शन सारियां अपने कोल ने ते आंसर भी आज आन लग गए बच्चों दे अच्छे रिप्लाई आ रहे अज। एंड आंसर बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन है मतलब वेलोसिटी जिहड़ी है की हुंदी रहंदी हर एक बिंदु ते चेंज होवेगी मतलब इसदा वेग बदलदा है पर जिहड़ी इहदी स्पीड है वो इक्को जही रहंदी है। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ गया जी इफ अ मूविंग बॉडी comes to rest then its acceleration is जे एक हल्दी वस्तु आराम विच आ जाती है रुक जाती है तां इसदा प्रवेग की होएगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑल ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। ये सारे ऑप्शन सी ठीक है जी। तो ऑप्शन ए की सकारात्मक बी नकारात्मक सी जीरो डी ये सब शुरुआती स्पीड ते डिपेंड होंदियां ने। आंसर फिर तो आन लग गया फटाफट जी हाँ बिल्कुल ठीक थोड़े आंसर आ रहे हैं ऐसा ही लगे रहो। बी आंसर नेगेटिव ठीक है जी आंसर की है नेगेटिव क्यों देखो तुहानू अगे भी कैसी कोई चीज आके रुकेगी दा मतलब रिटार्डेशन होएगी रिटार्डेशन का मतलब की है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो तुहानू सीधा सीधा भी लिख सकता सी रिटार्डेशन का की मतलब है उन्होंने थोड़ा उलझा के थोड़ा या और लिख दिता मतलब इको ही है। जे कोई चीज की स्पीड इंक्रीज होती है तो मतलब एक्सेलरेशन की आएगी सकारात्मक ए ऑप्शन बट इत्थे की है चीज रुक रही है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब वो की आएगी नेगेटिव नकारात्मक। चलो जी अज का अगला जिहड़ा आ गया है स्क्रीन ते फिर क्वेश्चन अपने कोल सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन मैरी गो राउंड व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड दा मतलब मुंडा किंदे विच है। हुण जे किसी नूं इंग्लिश समझ ना लगी होवे तां उन्हां लई मान लो कोई मुंडा है जिहड़ा आपां तुहानूं कुछ याद आ गया होवेगा कि जिहड़े आपां छोटे हुंदियां झूला लैंदे सी जिहड़ा राउंड राउंड की करदा सी घुमदा रहिंदा सी तां उनदी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड ठीक है जी। तां इत्थों की पता लगदा है कि वो जिहड़ा मुंडा है वो स्थिर है ए ऑप्शन बी ऑप्शन बिना किसी प्रवेग दे आ रहा अगे मतलब विद नो एक्सेलरेशन सी वो एक्सेलरेटेड जेड़ा उनका मोशन एक्सेलरेटेड है मतलब वो प्रवेग विच है। डी ऑप्शन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वो एक सार गति नाल चल रहा है। तो मेरे क्वेश्चन बोलते बोलते आंसर भी आन लग गए हैं तो नाले तुहानू कुछ तुहाडियां बचपन दी यादां भी तुहाडे सामने आ गई होणगियां बिकॉज जिन्ने भी अपने एरिया वाले जवाक ने वो सारे की करते छोटे होंदे की अपन सुपना हुंदा सी या अपना एक शौक हुंदा सी कि छेती छेती स्कूल जाइए या किते भी आप होके आइए जिथे की लगे हुण झूले वगैरह लगे हुंदे सी आप जांदे ना हुंदे ते इंजॉय वगैरह करते सी। जी अपना आंसर इनका बिल्कुल ठीक आ रहा है सी एक्सेलरेटिंग मोशन मतलब तुहानू सिंपल जी इत्थे चीज सी कुछ नहीं सी सिर्फ एक चीज पूछी गई सी यूसीएम की हुंदा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हुंदा है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज हर थां ते वेलोसिटी चेंज हुंदी है वेलोसिटी दा अंतर आना मतलब एक्सेलरेशन होना इस करके उन्हें कहते ने एक्सेलरेटेड मोशन। अगला क्वेश्चन फिर तो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ ते आ गया इन्हां विचों ये जी फिगर लभो जेड़ी की है जेड़ी की एक सार
गति वाली वस्तु नूं दर्शाउंदी है। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच फिगर। तो इहदा बिल्कुल सीधा जिहा आंसर है, बिल्कुल सीधा जिहा। तो आंसर आने भी लग गया जी हाँ, ए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। हुण देखो एक चीज होर इत्थे है कि इत्थे ऑप्शन ए भी सही आंसर मन्नी जाएगी। इत्थे ऑप्शंस नहीं आईयां, नहीं तो ऑप्शन जे होंदी ए ते डी। मान लो ते ऑप्शन विच हुण जे मान लो एग्जाम विच अद्धे बच्चे ए लगा के आंदे, अद्धे डी लगा के आंदे है, तां तुहानूं आंदा इसदा तुसीं जे ए लगाया तो मतलब वो एक्यूरेट मन्निया जाएगा, डी लाया तां भी वो सही मन्निया जाएगा, बिकॉज ए भी एक यूनिफॉर्म मोशन दी रिप्रेजेंटेशन है, ए भी यूनिफॉर्म मोशन दी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। एक मिनट रुक दो वीर जी, इत्थे एक मिस्टेक है। अपने कोल हैगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, जी हाँ, इत्थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये चीज की है रुकिया होया दा मतलब ऑब्जेक्ट रुकिया होया है, ऑब्जेक्ट रुकिया होया तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर ए बनेगा। सॉरी मिस्टेक होगी, ए आंसर आंदा बिल्कुल ठीक बनेगा। जे इत्थे वीटी ग्राफ हुंदा, जे इत्थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुंदा तां फिर ए ते डी ऑप्शन बिल्कुल सही होनियां सी, बट इत्थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस करके इसका आंसर ए ऑप्शन राइट होएगा। ठीक है जी, मिस्टेक ना इत्थे डी लिखा गया जी। अगला क्वेश्चन फिर तो तुहाडा तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 54 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 18 ਗੁਣਾ 3, 5 गुना 3 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया जी। ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक है जी, 15 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स एक चीज होर तुहानू मैं इत्थे समझा दिया, हुण तुहानू इन्ना पता लग गया किलोमीटर पर आवर नू मीटर पर सेकंड विच लेके आना होवे 5/18 नाल की करना पैंदा है, मल्टीप्लाई। ते जे मीटर पर सेकंड नू किलोमीटर पर आवर च उल्टा लेके आना होवे तो इन्नू भी उल्टा दो, 5/18 नू उल्टा दो तो कर दो 18/5। तुसीं एक चीज याद कर लो, अगली तुहानू अपने आप हो जाएगी। ठीक है जी, किलोमीटर नू मीटर च ले आना मतलब 5/18, ते जे मीटर पर सेकंड किलोमीटर जांदा ओनू भी उल्टा दो तो 18/5। सौखा जिहा अगला अपने को 19वां क्वेश्चन फिर स्क्रीन पे आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस दी इकाई है, एसआई यूनिट किंदी है, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी बोले तो वेग, एक्सेलरेशन बोले तो प्रवेग। वेग प्रवेग सब एक बराबर होता है ना, पंजाबी सब एक वर्गा लगता है। चलो जी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक आने लग गया बच्चों का, एक्सेलरेशन मतलब डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट आज का अपना लास्ट वन आ गया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद नू ऊपर वाल नू सुट्टिया जाता है, इट रेजिस टू 60 मीटर हाइट, ये 60 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है, एंड आफ्टर दैन इट केम बैक टू द थ्रोवर, मतलब फिर सुट्टन वाले दे हथ विच वापस आ जाती है। तक इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट की होएगा, कुल विस्थापन कितना होवेगा। ਜਦੋਂ किसी मान लो तुम आदि एग्जाम्पल भी इतने लै सकते हो, थोड़े हथे इस टाइम कोई होएगी चीज निक्की मोटी होएगी, ठीक है, ये ना हो ज्यादा फोन उड़ा दियो। ठीक है जी, 60 मीटर ऊंचाई ते तुसी कोई चीज छोटी मान लो फेंक दी है तो वो फिर हथे आएगी वापस। वो हथे आने का रीजन क्यों है, बिकॉज अर्थ हर एक चीज को आपदे वल की करती है, अट्रैक्ट, जिन्होंने आप कहने हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है जी, वो अपना अगे आएगा हली। तो तुसी इत्थे विस्थापन करना डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट देखो ऑप्शन 120 मीटर, 0 इक्वल टू डिस्टेंस, या इन्हां विचों कुछ भी नहीं। तो देखो 60 मीटर कोई चीज ऊपर नु आई, पहला एरो लगा लो, 60 मीटर ऊपर गई भाई, आ गए सी मैं खड़ा सी, मान लो ये अपने एज तक हाइट तक उत्ते आई है, ये हाइट है 60 मीटर दी, फिर आई उत्थों दी की आ गई, उन्हें हाथ च वापस आ गई, उन्ना ही रास्ता वापस, ये ऑपोजिट
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾर्ट करे ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितनी 0। ठीक है जी। तो बच्चों ये सी अपने बेस्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर सी, चैप्टर का नाम सी मोशन। ठीक है जी। हुण अगला जिहड़ा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ते आपां हुण अगला पार्ट जिहड़ा लैके आवांगे MCQ बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो जे तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या तो लाइक करना, शेयर करना ना भुलना। फटाफट साडे चैनल नूं हिट कर दिओ, नाले ज़्यादा तो ज़्यादा लोग की होवो इकट्ठे होवो, ताकि सानूं भी वधिया लगे ते तुहानूं भी वधिया लगे। तो शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, टाटा, सी यू।